أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ جانوروں میں جو کیڑے موجود ہوتے ہیں جن کو کرم کہتے ہیں، ورمز کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا نقصان ہے، اس کی علامات کیا ہیں، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ورمز یعنی کیڑے اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ جسم کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ان کو بیرونی کرم کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں جانوروں میں، ان کو اندرونی کرم کہتے ہیں۔ تو جو جسم سے باہر ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جوئیں ہو سکتی ہیں، چچڑ ہو سکتے ہیں، چچڑیاں، ان کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اور مائٹس اور بہت ساری اور بھی مینج کی ایک ڈیزیز ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور جو اندرونی کرم ہے وہ بھی پیٹ کے اندر بھی کرم موجود ہو سکتے ہیں، لنگز کے اندر بھی کرم موجود ہو سکتے ہیں، اور جگر کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ تو پیٹ کے کیڑے، پھیپھڑوں کے کیڑے، جگر کے کیڑے، یہ اندرونی کرموں میں آتے ہیں، اور پھر یہ فیتا نما ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں، چپٹے ہوتے ہیں۔ نیماٹوڈز، ٹریماٹوڈز، سیسٹوڈز، یہ انگلش نام ہے۔ تو ان کو بہرحال جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں اہم ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو کرم ہوتے ہیں نا، کرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا پیراسائٹ، ایسا کیڑا یا ایسا جاندار جو اپنی زندگی کا کچھ دورانیہ یا سارا دورانیہ کسی اور میزبان پہ گزارتا ہے اور اس کی خوراک حاصل کرتا ہے اور اس کا خون پیتا ہے، اور پھر اس کا گزارا ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں میں بھی ایسی کیفیات پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے ملک پاکستان کو پیراسائٹ کی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ تو کرم جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہے؟ نمبر ون، ان کا خون چوستے ہیں۔ نمبر ٹو، ان کے اندر اپنے زہریلے مادے خارج کر کے اس ہوسٹ، اس میزبان کو نقصان دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو خوراک حاصل کر رہے ہیں ان کی، دوسرا زہریلے مادے بھی ان کے اندر اپنے چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میزبان نہ صرف خوراک دے رہا ہے بلکہ ان سے زہریلے مادے لے کے بیمار بھی ہو رہا ہے۔ تو کرم کے بہت زیادہ نقصان ہے۔ چچڑی بھی یہی کام کرتی ہے، یا چچڑ جو ہوتے ہیں، یا لائسز جو ہوتے ہیں، جوئیں جو ہوتی ہیں، اور پیٹ کے اندر جتنے بھی کیڑے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ ایک تو وہ خوراک کا بہت سارا حصہ خود شیئر کر لیتے ہیں اور اپنے زہریلے مادے میزبان کے اندر ریلیز کر کے اس میزبان کو، اس جانور کو بیماریوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے بچنے کے لیے ان کا لائف سائیکل توڑنا ہوتا ہے۔ لائف سائیکل اگر اس کرم کا، اس پیراسائٹ کا توڑ دیا جائے تو وہ آگے گرو نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ علامات کیا ہیں۔ علامات کیا ہیں کہ اس جانور میں کرم موجود ہیں، اس جانور میں پیٹ کے کیڑے یا پھیپڑوں کے کیڑے یا جگر کے کیڑے موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ بیرونی کرم تو نظر آ جائیں گے، بیرونی جو ہوتے ہیں وہ چچڑی لگی ہوئی ہے یا لائس لگے ہوئے ہیں، تو جسم جلد کھردری ہے، تو چمڑے کے اوپر وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سپرے بھی استعمال کرتے ہیں، آئیور میکٹن کے انجیکشنز بھی استعمال کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، تلف کرنے کے لیے۔ بیرونی کرم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پہلے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، ہم نے بتایا کہ نیگاسان میڈیسن ہے، نیگا وان میڈیسن ہے، یہ کیمیکلز ہیں، اور ٹرائی کلورفان ایک کیمیکل ہے۔ اس کے محلول، ان کیمیکلز کے مختلف طریقوں سے محلول تیار ہوتے ہیں، وہ محلول تیار کر کے سپرے کروا دیا جائے جسم کے اوپر اور اس باڑے میں ارد گرد، تو یہ بیرونی کرموں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور انجیکشن آئیور میکٹن بھی بیرونی کرموں کو خاص طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے، آئیور میکٹن سالٹ میں بہت ساری پریپریشنز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان پریپریشنز کو ریگولرلی استعمال کیا جائے۔ ہر 15 دن کے بعد
पहली डोज के 15 दिन के बाद लाजमी तौर पे दूसरी बूस्टर डोज लगाएं। 15 से 20 दिन के दरमियान टाइम है हमारे पास। अगर 20 दिन से ज़्यादा वक्फा कर लेंगे तो हमारी पहली डोज आइवरमेक्टिन इंजेक्शन की ज़ाय हो जाएगी। और इसी तरह अगर अंदरूनी किरणों को ख़त्म करने के लिए भी हम दवाई इस्तेमाल हमने कोई भी करवाई है, आइवरमेक्टिन भी अंदरूनी और बैरूनी दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब हम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं तो हम अंदरूनी और बैरूनी किरणों दोनों के लिए हमने प्रोटेक्शन जानवर को दे दी है। जानवर अब अंदरूनी और बैरूनी किरणों से इंशाल्लाह महफूज हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बूस्टर डोज लाजमी देनी है। और वो डॉक्टर साहब उसके जिस्मानी वेट के हिसाब से, जानवर के जिस्मानी वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगाएंगे और सब कट इंजेक्शन लगाएंगे। और टाइम भी जो ठंडा होना चाहिए, सुबह का टाइम बेहतरीन है और शाम का टाइम बेहतरीन है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, अंदरूनी किरणों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी प्रेपरेशंस मौजूद हैं, लेकिन हमें पहले ये तो पता हो कि इस जानवर में है भी सही या नहीं। तो वो जानवर खाना पीना कम कर देगा, नंबर 1 ये निशानी है। और अगर खाना पीना भी ठीक है, फिर भी खाने पीने के बावजूद भी जानवर कमज़ोर ही कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी पसलियाँ नज़र आती हैं और उसको जो खिलाया जाता है वो उसके जिस्म को नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कीड़े मौजूद हैं जो कि उसकी खुराक खा जाते हैं और उसके अंदर अपने जहरीले मादे पैदा करते हैं। तो उसके लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, उसके गोबर का सैंपल, और अगर भेड़ बकरियां हैं तो मेंगनियों का सैंपल लेके लेबॉर्ट्री भेजें। वो वहाँ पे चेक करेंगे कि किस किस्म के इसमें एग्स, अंडे नज़र आ रहे हैं इस फीकल सैंपल में, इस गोबर के सैंपल में या मेंगनियों के सैंपल में क्या नज़र आया है। उस हिसाब कौन से अंडे नज़र आए हैं उस हिसाब से वो आपको दवाई रिकमेंड कर देंगे। अल्बेंडाजोल्स हैं, मिबेंडाजोल्स हैं और ऑक्सफेंडाजोल्स हैं। ये वो मेडिसिन हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल करवाई जाती हैं अंदरूनी किरणों को ख़त्म करने के लिए। और इसी तरह ट्रॉक्सी है, वो फेशियोलियसिस जो जिगर के कीड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पे जो दवाई इस्तेमाल होती है वो ट्रॉक्सी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, वो इस्तेमाल होती है। ऑक्सीक्लोजेनाइड साल्ट है, वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक तो जानवर कमज़ोर हो जाता है, अगर सेहतमंद भी है, अगर खाना पीना भी ठीक कर रहा है, लेकिन उसके जिस्म को वो खुराक नहीं लग रही, तो ये उसकी बेहतरीन अलामत है कि हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये मसला मौजूद है। और लेबॉर्ट्री टेस्ट से मज़ीद हम उसको कंफर्म कर लेंगे कि पेट के किरणों का मसला है या नहीं है। और जब जिगर के कीड़े होते हैं तो उसमें अहम अलामत यह है कि जानवर के जबड़ों के नीचे इस जगह पर दोनों जगहों पे या यहाँ गर्दन के सामने एक छलकती हुई एक झिल्ली सी महसूस होती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। यहाँ पर वो एक थैली सी लटकना शुरू हो जाती है। वो असल में जो जिगर की रतूबत है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाती है। होता ये है कि जब पेट के जिगर के अंदर कीड़े हो जाते हैं, फेशियोला हिपैटिका और फेशियोला जैजेंटिका, ये पैरासाइट्स हैं जो जिगर में होते हैं। जब ये हो जाते हैं तो वो जिगर की अंदर जो नालियां होती हैं, डक्ट्स होती हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं और जो रतूबत जिगर से निकल के मैदे में जानी है और वो जो बाइल डक्ट है जहाँ से बाइल ने मैदे में जाना है, वो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है उन पैरासाइट्स की वजह से। वो उसका रास्ता बंद कर देते हैं और वो फिर अल्टीमेटली एक पानी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये अलामत है, हमें उनके लिए स्पेशली ऑक्सीक्लोजेनाइड साल्ट, ट्रॉक्सी इंजेक्शन और भी बहुत सारी प्रेपरेशंस हैं, डॉक्टर साहब के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमने स्केड्यूल भी आपको बता दिया कि पहली डोज जब देंगे उसके 15 से 20 दिन के अंदर दूसरी डोज लाजमी दें और तीसरी डोज जो है वो तीसरी डोज जो है 1 महीने के बाद दें। दूसरी डोज के 1 महीने के बाद, पहली डोज जो है
पहली डोज के 15 से 20 दिन के बाद देनी है, जो तीसरी डोज है इस दूसरी डोज के 1 महीने के बाद देनी है, और फिर हर 3 महीने के बाद हम किरम कुश अद्वियात ज़रूरी तौर पर जानवरों को देते रहें। और हर महीने कम से कम लैब टेस्ट करवा लेना चाहिए जानवरों के गोबर का और उनकी मेंगनियों का। अगर भेड़ बकरियां हैं तो वो लैब टेस्ट हमें बता देगा कि अब कौन सा मसला आ रहा है और कौन सी मेडिसिन पेट के कीड़ों के लिए या जिगर के कीड़ों के लिए या फेफड़ों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन हमें इस्तेमाल करनी है, ये कंफर्म तौर पे हमें लैब बता देगी। तजर्बे की बुनियाद पर भी डॉक्टर साहब बहरहाल ये करवाते हैं। जो जानवर ग्रेजिंग करते हैं, मतलब जो चराई वाले जानवर होते हैं, चराई वाले लोगों को ये चाहिए कि वो ग्रेजिंग का पैटर्न तरतीब ज़रा बदल बदल के ग्रेजिंग करवाएं, चराई करवाएं। वो यही है कि जब एक ट्रैक पे वो जाएं एक दफ़ा, तो जब वापस आए तो उस ट्रैक से वापस ना आए, किसी दूसरे और ट्रैक से वापस आए, और जब अगले सीज़न में जाएं तो वो थोड़ा सा ट्रैक अपना चेंज कर लें। उससे क्या होगा कि पैरासाइट्स का जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। वर्म्स का, किरमों का लाइफ साइकिल तबाह हो जाएगा, वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। पेट के कीड़ों का मसला बहुत ज़्यादा जानवरों में देखा जाता है। जानवरों को पता नहीं चलता वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, साफ है या नहीं है। ये उनके मालकान ने उनकी केयर करनी है और उनको साफ़ सुथरा चारा देना है और पानी साफ़ सुथरा देते रहना है। पानी के हौज जो हम फार्म्स पे बनाते हैं उनकी रेगुलरली सफाई करते रहें, उनको साफ़ करते रहें। उनके अंदर वो जो सब्ज़ कलर की वो अंदर काई सी जमा हो जाती है उसको साफ़ करते रहें। और अच्छा, चरागाहों को अगर हमने बचाना है पेट के जो किरम होते हैं उनसे बचाने के लिए, ये जो घोंगे होते हैं ये चरागाहों में मौजूद होते हैं और ये घोंगों से ये पैरासाइट आगे बढ़ते हैं और आगे ट्रांसफ़र होते हैं। इन घोंगों को तल्फ करने के लिए, जिनको स्नेल्स कहते हैं आई थिंक, उनको तल्फ करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। 2% उसका महलूल तैयार करके वो उसका स्प्रे करवा दिया जाते हैं उन चरागाहों पे। लेकिन जब तक बारिश ना हो दोबारा उन चरागाहों पे हमने चराई नहीं करवानी। अगर हमने कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करवा दिया है, जिसको नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा, अगर, क्योंकि ये जहर होता है, अगर हम बारिश से पहले चराई करवा देंगे तो जहरीले असरात जानवरों में आ जाएंगे और नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।